Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. A scrap of roti, last night's leftovers to be had for today's lunch. A bottle of hair oil, a single slipper. The remains of the day, the images that came to haunt India. In one single frame, the tragic story of our migrant workers in this coronavirus pandemic and lockdown. These were the 20 men who slept on the rail tracks in Aurangabad in Maharashtra on the morning of the 8th of May because they were exhausted from walking all night and at about 4 a.m. thought it's safe to pause briefly. And also because they thought, at least here on the tracks, the police may not find them as they made their way home. But they would never reach their village. A goods train carrying petrol and diesel ran over them a little after 5 in the morning. This is the story of the unspeakable tragedy of a village called Antoli. To reach the village of Antoli, we must travel a distance of nearly 1,000 kilometers from Delhi. It's a road journey that takes us close to 18 hours, taking our car over broken roads and still to be constructed flyovers, through mud, through dust, through open fields, and then past the winding curves of Madhya Pradesh's stunning Kaimur mountain range. As we make our way over the narrow, kacha, extremely bumpy tracks, suddenly we are surrounded by lush green and the pastoral beauty of this Adivasi belt. Even when the milestone announces its arrival, Antoli Gaon is so remote and so inaccessible that we have to drive through many other interior villages before we can reach it. And at the last point, there is just no road. You simply have to get off and walk. Through forest land, past grazing cows, past children playing in these open fields, over rivulets and muddy puddles, before you arrive at these small hutments, literally in the middle of nowhere. And here we finally are in the village of Antoli. It's taken us hours and hours of driving and kilometers of walking to actually get here. Now, Antoli in many ways is the forgotten headline. We were haunted for, 24 hours when migrant workers who were asleep on the rail tracks in Aurangabad were run over by a goods train. But did we ever bother to find out what their names were, who their wives were, who their mothers were, who their parents were, who their children were? Well, we came here on 100th day of being on the road with the pandemic to make sure that those men who died on those rail tracks are not mere statistics. All of the women sitting around me here at the village well lost somebody on the 8th of May asleep on that rail track. मैं आपसे शुरू करती हूँ दीदी, आपका नाम? केसमती। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे मालूम है कि आपका जो बेटा था, बेटा मारा गया जब वो रेल की पटरी पे सोया था। बेटे का नाम? धर्मेंद्र सिंह। क्या उम्र थी धर्मेंद्र की? 20-25। अच्छा, एक बात बताओ, ये इतना सुंदर गांव, यहाँ इतनी खेती, इतनी खुशी, मुझे लगती है क्यों वो इतनी दूर महाराष्ट्र में काम करने गया? हो गया नहीं, नौकरी नहीं पाए, वैसे निकल गए। नौकरी नहीं मिल पाई? हाँ, यहाँ वहाँ बहुत वो कर देखे, पर नहीं पाए तो निकल गए। अच्छा, ये हमारे हर न जोतरी तो शहर में, मतलब उसका आपको लगता है कि यहाँ पैसे नहीं बन पाते? हाँ, खेती से नहीं बनते? हाँ, नहीं बनते। अच्छा अम्मा, एक बात बताओ, ज्यादा है नहीं, वैसे नहीं, खेती ज्यादा नहीं? हाँ, ज्यादा नहीं है। किस चीज की खेती होती है? हो गया 1.5 एकड़। अच्छा, 1.5 एकड़। ये बताओ, अभी आप तो माँ हो, कैसे सब्र कर रहे हो, कैसे अपनी शक्ति रख रहे हो? कैसा कार्य बताओ? बताओ। अब मजदूरी करके जिया। आप बताओ, आपका भी कोई था पटरी पे दीदी? आपका कौन था? हमार नाती हूँ। अच्छा अच्छा, दूसरी नाती रह बेटा, दूसरी नाती रहे भैया। नाती बिन हाथ तुम्हारी बरोबर पैसा कुढ़ा दे सरकार पर, जिसे तो हाथ धो लिया। मतलब आप कह रही हैं कि सरकार से पैसा तो मिला, लेकिन जो अपने आपके पोते हैं वो वापस नहीं आ सकते हैं?
And in many cases, it's women who are left to carry the burden, the emotional responsibility. आपका नाम बताओ. चंद्रवती सिंह. चंद्रवती, आपके हस्बैंड की डेथ हुई पटरी पे? हाँ. उनका नाम क्या था? दीपक सिंह. और उनकी क्या उम्र थी? उनका यानी 20-25. और आपकी? 20-25 नहीं, 22-23. और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है यानी 24. बच्चे हैं? हाँ, एक. तो कैसे शक्ति पाती हो? और आपको लगता है कि देश बहुत जल्दी भूल गया, जो हुआ वो हादसा वो बहुत जल्दी भूल गया? नहीं भूली. आप नहीं भूले लेकिन बाकी लोग भूल गए नहीं? हाँ, मैं तो जिंदगी भर का नहीं भूलूंगी. मैं आपके पास आती हूँ इधर. आप मुझे बताइए, क्योंकि आप सब औरतें हैं, आप दर्द समझती हैं, मुझे मालूम है. बताओ बताओ बताओ, पहले मुझे बताओ आपके दोनों पोतों का नाम क्या था? बुद्धराज. मैं ये उतार लूं ताकि हम आपकी शक्ल देख पाए. बुद्धराज सुदयाल. ये लो, आप बताओ क्या नाम थे आपके पोते के? गजराज सिंह. अच्छा, और आप बताओ यहाँ पे सभी औरतें जो बैठी हैं, सभी का दिल एक तरह से टूटा हुआ है नहीं? हाँ, सब एक तरह से टूटा है. तो इतनी मतलब क्या हुआ? उन्होंने किसी ने जो सो रहे थे, जब चल के यहाँ पे घर आने की कोशिश कर रहे थे, किसी ने फोन किया? अब पता नहीं कि आप में से किसी को फोन आया अपने पति का, बेटे का? आप बताओ, आपका कौन था पटरी पे? विजय सिंह. आपका हस्बैंड? विजय सिंह आदमी. और ये आपकी बच्ची? बच्चा है. बच्चा है. क्या नाम है बच्चे का? रोहित सिंह. क्या उम्र है? So this is a small child here who doesn't even actually understand what has happened to his father. And I think what a lot of the women here are wanting us to understand is their pain, is their sense of heartbreak. Yes, they did get compensation. But if you come here and you see behind me, the entire village almost is gathered. आप मेरे पीछे देखेंगे तो पूरा गांव की बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं. दीदी, मैं आपसे पूछूंगी, आपका नाम मुझे बताइए. यहाँ पे सुनीता सिंह. नाम बताओ. सुनीता सिंह. सुनीता, ये बताओ कि उस दिन, हादसे के दिन, पटरी पे आपका कौन लेटा हुआ था? पति. जी. और आपके बच्चे हैं? एक. अच्छा, यहीं पे खेल रहे हैं कहीं? जी. आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि आपके जो लोग थे गांव के, वो पटरी पे लेट गए? हमने सुना कि 4 बजे सुबह थे, बहुत थके हुए थे, उनको ये भी लगा कि शायद पुलिस उनको वहां नहीं पकड़ेगी. पता. हाँ, क्या लगता है? पता नहीं कि पुलिस पकड़ेंगे, क्या होगा उन्हीं लोग जानेंगे. तो नहीं थे वहाँ पे. आप बताओ दीदी. अब सुनी, अब मौके पर तो नहीं रहे. हाँ. का पुलिस पकड़ा, का को पकड़ा, वहाँ से आया फोन से. ऐसे 11 बजा. तब हमको मालूम आया कि हमारा लड़का तो यह मेर हो गया. हम ये नहीं जानी कि का पुलिस कहाँ लाई के धारा, का पटली में सब आया, का कहाँ लाई गए, और ठेकेदार का अपने यहाँ एक काम करावे, का पटली में सुबह में कहीं लाई. आपको पता कैसे लगा? सबको खबर कैसे मिली? टीवी पे देख के? टीवी का देख के, मोबाइल भी देख के. मोबाइल पे देखा आपने? हाँ, मोबाइल पे टीवी, मोबाइल पे समाचार देखे, तब इस गांव को पता लगा कि कितना बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ है. और मैं आपसे पूछूंगी कि क्या अभी कभी लगता है मन में कि शायद शहर जाना ही नहीं चाहिए था? हाँ, आपसे पूछते. आपसे कहा. आप भेजना चाहेंगे अपने आदमियों को अब शहर में? नहीं. हाँ, नहीं. अब नहीं है तो किसको भेजेंगे? अब नहीं है तो किसको भेजेंगे? हाँ, अब किसको भेजब? पर बाकी जो गांव के जवान लड़के हैं कहीं तो कट गई ना, कहीं भेजब हम. अच्छा, आपको लगता है कि देखिए आपको कॉम्पनसेशन तो मिला, लेकिन जो देश के लोग हैं वो समझ पाए कि गरीब किस हादसे से गुजरे? कि आपको लगता है कि देश आपको भूल गया? हाँ, आप नहीं भूले लेकिन देश आपको याद रखता है. हम ही नहीं, जिंदगी न भूली. जिंदगी नहीं भूल सका. खानो भी खाई थे तो टिप टिप आंसू गिरा थे. अब सुनी, खाना भी ठीक नहीं है. खबर. अब लड़का वहाँ ते फोन लगा मैं कि तू खाना दे थे.
जब ले गया है। ए तो दीदी हम खाई थे तू बियारी कर रखी थे तो हमार तो हम सुने में हम ही इंद्री हमार जला कि हम खाते हैं, हमारा लड़का भूखे हैं। भूख के मारे चल रही निकल चली भर भूख के मारे निकले, भूख चलते के मारे हुए। निकल भूख के मारे पैदल निकले। हाँ पैदल निकला। यही तो समझने वाली बात है और यही हम लोग सब भूल गए हैं। हमने अपने माइग्रेंट वर्कर्स को, हमारे श्रमिक जो मजदूर हैं, उनको एक तरह से एक स्टेटिस्टिक बना के रखा हुआ है। लेकिन आप ऐसे गांव में आइए तो आपको यहाँ लोगों का दर्द समझ आएगा। यहाँ पे हम आदमी लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पे काफी लोगों का दिल टूटा हुआ होगा जब ये हादसा हुआ। हाँ दीदी, हाँ हाँ बिल्कुल, काफी पूरा गांव का दिल टूटा है, पूरा गांव का दिल टूटा है। आपसे भी पूछती हूँ, क्या 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 बोलना चाहेंगे? हम तो ये बोलना चाहेंगे कि क्या बताएं, हमारे लड़के कमाने गए थे बच्चों के लिए, माता पिता के पालने के लिए, स्वयं से धार हो गए। हमको पूरे मोहल्ला सून हो गए, हमारे होनहार बच्चे चले गए। हमको क्या बताएं। आपका कौन था पटना? हमारे नाती हैं, भांजे थे, भाई हैं, भतीज हैं, ये सब रहे थे। आपको क्या लगता है कि कितनी परेशानी उनको हुई होगी कि वो 4 बजे सुबह पटरी पे लेट गए? पूरा रात चले 40-45 किलोमीटर दूर, थक गए बेचारे, भूखे प्यासे, कहाँ पानी कहाँ पिंगल, अपना कपड़ा लत्ता लिए सब वजन, सो गए बेचारे। बैठे कि सो गए हो गए, वो सोए नहीं है, बैठे हैं कि लेट गए, उनको नींद आ गया। क्या करें, परेशानी भूखों के मारे। अब वो यहाँ फ़ोन करते थे कि खाना हमको बराबर नहीं मिल रहा है, इसीलिए चल दिए। क्या करें। मतलब आपको फ़ोन करके बताते थे कि खाना नहीं मिला? हाँ ये तो बताए थे। मैं आया था तो बात कर रहे थे पिताजी से, ये हमारे जीजा हैं, तो वो भांजा फ़ोन कर रहा था बात से कि खाना बाबू बराबर नहीं मिल रहा है। हमने कहा बेटा अब क्या करें। तो वो पिताजी हैं, धन सिंह के पिताजी हैं। हाँ, उनसे थोड़ा सा। और आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी एक दर्द की, जैसे यहाँ चाचा बैठे हैं जमीन के 2 बच्चे, चाचा बैठे हैं, मैं इनको देख रही थी, ये किस तरह से बैठे हैं यहाँ पर। चाचा जी आपके तो दो बच्चे थे पटरी पे, क्या नाम थे उनके? निर्वेश, रविंद्र। बहुत दिल टूटा? अरे कुछ न कहा, कुछ न कहा। क्या बोलना चाहेंगे आप इन देश के लोगों से जो आपके बच्चों का दर्द नहीं समझ पाए, जो ऐसे हालात हो गए कि उनको पटरी पे लेटना पड़ा, 40-50 किलोमीटर चलना पड़ा, कई मजदूरों को तो 100-100, 500, 600, 700 किलोमीटर चलना पड़ा। तो क्या देश के लोग समझ पाए कि आप पे क्या बीती? क्या बोलना चाहेंगे सब बीती ही दादा, सब बीते हैं मई, अब सब बीते हैं मई को। नहीं बुखार चढ़ जाए से आगे, बुखार चढ़े मैं सब बीते, क्या बताऊं। बहुत दर्द है ना? बहुत दर्द है बाबा जी। आओ चाचा इधर आओ, आओ चाचा इधर आओ, आप बताओ। आप मेरे साथ बैठो, बताओ। 2 बच्चे खत्म हुए इनका और दामाद। इनके 2 बच्चे और दामाद, ये चाचा जी के? जी, वो बच्ची है उनकी। जी, मैं उनसे बात कर रही थी। आप मुझे ये समझाइए चाचा, आप भी आ जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे हर घर में एक ट्रेजेडी है। और चाचा आपके बेटे हैं, नाती साहब, मैं कुछ खाए खबर आ रहा न काम कर रहा न रिंग रहा सामने से मैं असमर्थ हूँ। लान खबा में मुही अब को दे मोही को पूछी, अब कोई पूछने वाला नहीं बचा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और यही यहाँ पे सब लोग कहना चाहते हैं। आप इनकी शक्लें देखें तो आपको इनका दर्द नजर आएगा कि ठीक है, मरे में दर्द हटेगा, मरे में हटेगा। आप मरेंगे तो ये दर्द हटेगा नहीं, बीच में नहीं हटेगा। हाँ बहुत दुखदाई है, बहुत दुख। न रात नींद आवे, न खाए खबर आ रहा है, न रंग रहा है, न बगरा रहा है, न बतुआ रहा है, कुछ नहीं। अब मौत में ही चैन आएगा आप बोलते हैं। आप कहाँ बताओ, दिल तोड़ने वाली बात है। और ये हम कहना चाहते हैं कि माइग्रेंट एक मिनट, आओ चाचा, आप भी बैठो, सब बैठो। तो आप अगर उस तरफ देखिए तो उस तरफ गांव की औरतें हैं, वो गांव की औरतें हैं जिन्होंने अपनी तरफ से अपना दर्द व्यक्त किया। और इस तरफ आए तो गांव के आदमी हैं, गांव के जो
बूढ़े हैं, जो घर संभालने वाले हैं सबके, वो बता रहे हैं हमें। मुझे आप बताइए, आपको लगता है कि देश नहीं समझ पाया मजदूर का दर्द? नहीं समझ पाया। हाँ बताओ, क्या नहीं समझ पाया? क्या हुआ? क्या जो पैसा दिया, जो हमको शासन भिजवा दिया होता मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार मिला के, तो हमको 50,000 से ज्यादा खर्चा न लगता। हमको 12 लाख मिला, क्या मिला? हम क्या करेंगे 12 लाख रुपए? हमारे बाल बच्चे चले गए। 50,000 देके वो शासन प्रशासन दोनों मिल के भिजवा दिया होता हमारे बच्चों को, तो हम कम से कम हमारे बच्चे तो हमारे सामने रहते, कितना हमको कमाते और खिलाते, हम खाते जिंदगी भर। आप इधर आइए, इधर एक मिनट आइए। आप ये कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी बात है, आप ये कह रहे हैं कि जो लाखों में मुआवजा मिला, वो मुआवजा कोई मीनिंग नहीं है। कोई मीनिंग नहीं है। अगर पहले दिन बंदोबस्त हो जाता, ठीक है, सब सरकार मिलकर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकार अगर मिलके आपके बच्चों को, आपके भतीजों को, आपके नातियों को घर पहुंचा दिए होते, तो हमको ये दर्द न होता। क्या करेंगे हम 12 लाख रुपए? हमारे तो पर हमारा अंश चला गया, हमारे माने अंश खत्म हो गया। 2 नाती इनके खत्म हो गए, उनके आवाज कोई नाम निशान नहीं है। जो पैसा पानी की दे, तो ये बहुत जरूरी बात है। सरकार जो दोनों सरकारें मिल करके और हमारे बच्चों को पहुंचा दिया होता, जो भी 10, 20, 25 हजार लगता, तो हम अपने बच्चों को तो कम से कम सामने देखते। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसमें शासन प्रशासन की ही गलती है। हम तो यही कहेंगे हमारे समझ से कि हम क्या करेंगे मुआवजा, और क्या करेंगे धन दौलत और दुनियादारी, डेरा संपत्ति किसके लिए करेंगे? जीवन से चले गए। यहाँ पे सब गांव वालों का कहना है कि ठीक है मुआवजा मिला, लेकिन मुआवजा पैसे से दर्द नहीं जाता। पैसे से, है ना, पैसे से दर्द नहीं जाता, पैसे से दर्द नहीं जाता। जब तक हम जिंदा हैं, ये तो कुछ कह भी नहीं पाते। आई विल लीव यू विद दिस। होश बेहोश उनके घर वाले भी हो गए। अगर आप इनको देखें तो ये कहते हैं हम अकेले पड़ गए। हाँ, हम अकेले पड़ गए। आप मुझे 1 लाख दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए, 4 लाख दे दीजिए, 12 लाख दे दीजिए, हम अकेले पड़ गए। और ये कहते हैं कि काश जी 2 प्रदेशों ने, केंद्र सरकार ने, सारे प्रदेशों ने अगर कुछ कोशिश की होती कि हमारे जो मजदूर हैं हम उनको ठीक तरह से घर पहुंचा पाते, तो शायद कोई मजदूर पटरी पर नहीं लेटता, शायद कहीं कोई मजदूर हाईवे पर नहीं निकलता, कोई मजदूर ट्रक के पीछे नहीं बैठता, कोई मजदूर ट्रेन के लिए लड़ाई नहीं करता। क्या बोले, 100 दिन के बाद हम यही कह सकते हैं कि ये एक कहानी है जो हमने 3 महीने अपने दर्शकों को लाई, और हमें लगा कि हमारे 100th डे पर हमें इस गांव में आना चाहिए जहां ऐसा हादसा हुआ जिससे देश हिल तो गया, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की कभी इस गांव में आकर इन लोगों का दर्द समझने के लिए। देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या कहना चाहेंगे, अब हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे देश प्रदेश को? हम तो पढ़े हैं, अब हमारे सुनता कौन है? अब रास्ता खोरी देखे होंगे कि किस तरह के हम जी रहे हैं। सरपंच, सेक्रेटरी, दुनियादारी, सब कलेक्टर साहब महोदय सब यहाँ आए और देखे, आओ कुछ नहीं लगता। ये गांव जैसे थोड़ी लग रहा है, ये तो हम जंगल पहाड़ में घुसे हैं। 15 में 70 देश रोड है, प्रधानमंत्री रोड है या मुख्यमंत्री रोड है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं खुद, अब आप तो वहाँ से दिल्ली से आए हैं। जी शासन को क्या कहेंगे हम? धन्यवाद तो कभी जीवन में दे नहीं सकते, शासन को हम धन्यवाद कभी नहीं दे सकते, इसलिए कि अब आप यहाँ की सब सिचुएशन, माहौल सब देखते। यहाँ का दर्द आप आएंगे तभी आपको समझ आएगा। ये जो चाचा है जो कुछ बोल नहीं पाते, आई विल लीव यू विद दिस इमेज। दिस इमेज आई थिंक कैप्चर्स the unspeakable tragedy of the village of Andoli.